وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگی، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر دور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ فرق لاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں۔ مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پٹ جائے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کہ یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تقریب میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دیا۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو فرصت دی ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے ایک پیغام، ایک میسج ہے ہمارے نام، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج وہ جا رہے ہیں تو ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، دنیا پر آنے کی ایک ترتیب ہے، دنیا پر جانے کی وہ لازمی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ باپ سے پہلے اولاد آ گئی ہے۔ دنیا پر آنے کی یہ ترتیب ہے، اور یہ طے شدہ منظم ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ جائے پھر ہی اولاد جائے گی۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا سے کب کوئی جا سکتا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم ہر لحظہ موت کے لیے تیار رہیں۔ موت کے لیے تیاری یہی ہے کہ ہم توبہ کی دہلیز پہ کھڑے رہیں، اپنے مالک کے حضور رجوع کرتے رہیں، اچھے اعمال کا ذخیرہ کریں، اور کسی کے حق ہمارے ذمہ پر نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ پچھتائیں۔ کسی نے اگر کسی کا حق غصب کیا صرف 3 پیسوں کے عوض کے اندر، قیامت کے اندر یہ کرنسی تو ہمارے ساتھ ہوگی نہیں، یہ تو ہم یہیں چھوڑ دیں گے، یہ مال، یہ دولت، یہ بینک بیلنس یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈرتے۔
जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। वो तो कफन भी मैला नहीं होंगे, देंगे बांट लेंगे। तो आखिरत में सिक्का राजुल वक्त अमल होगा, तो फिर अमल लिए जाएंगे। तो जिसने किसी का एक टगा मारा होगा, एक 3 पैसे मारे होंगे, उसके बदले में 700 नमाजें जो बाजमात पढ़ी गई हैं वो ले ली जाएंगी। और जो लोगों के प्लाट हड़प कर गए, रिश्वतें, ज्यादतियाँ, जोर जुल्म और लोगों के साथ ज्यादतियाँ और लोगों का माल हथियाना, खून निचोड़ना, अजियतें देना, तो किस तरह वो क़यामत के दिन ओहदा बना हो सकेंगे। तो आज अल्लाह की रहमत के दर कुशादा हैं और उसकी रहमतें आवाज़ दे रही, आज वो पलट के मेरी रहमत के दरवाजे खुले। अल्लाह अकबर। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान पलट के आ जाते, रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताओ, यूं भी कोई आवाज़ देता है, यूं भी कोई पुकारता है? भागे हुए मुजरिम का ताक़ुब किया जाता है, कभी यूं भी प्यार से उसको बुलाया जाता है? लेकिन 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब पुकार पुकार के कह रहा, ओ भागने वाले आजा, पलट के, तेरे रब का दरवाजा खुला हुआ है। वो ये नहीं देखेगा तूने जुर्म कितने किए, वो ये देखेगा तू पलट के आएगा, आ गया। और वो तेरे गुनाह नहीं देखेगा, तेरे आने को देख के तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर। जितना बड़ा गुनाहगार है उतना बड़ा नेकोकार। आ तो सही, आना तो तूने है ही। फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, फिर जो तुझे लोग उठा के लाएंगे। अच्छा नहीं है कि अपने कदमों से खुद ही चल के आ जा। आज खुले मुंह आ जा, उसकी रहमतें तेरे इस्तिकबाल करने के लिए मुंतज़िर हैं। आज वो आवाज दे के कह रहा है, आजा मेरी रहमतें तेरी मुंतज़िर है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तुझे करीम रब से किसने मगरूर कर दिया, तकब्बुर में, रऊनत में मुब्तला हो गया, तू अपने मालिक की दहलीज को छोड़ गया। आजा पलट के, वो करीम तुझे बुला रहा है। और देख उसका रिश्ता कितना गूढ़ा है। अल्लाह जी खालिका का, उसने तुझे पैदा किया है, वो तेरा खालिक लगता है। अल्लाह अकबर। यानी वो तुझे बुला रहा है जिसका तेरा रिश्ता इतना गहरा है कि वो तेरा खालिक लगता है। माँ को जो औलाद से प्यार है, दुनिया के किसी तराजू पे वो प्यार तोला जा सकता है? माँ की मोहब्बत का कहीं वजन हो सकता है? आजकल ये आपके भी थोड़ा सा आगे गुजरे तो इतने बड़े तराजू गाड़ दिए गए हैं जहाँ पूरा कंटेनर तोल लिया जाता है। तो मैं दोस्तों को कहता हूँ कि आज इतने बड़े बड़े तराजू ईजाद हो गए हैं कि जहाँ कंटेनर तोड़ लिए जाते हैं, पहाड़ तोड़ लिए जाते हैं आज जदीद दुनिया के अंदर। लेकिन कोई तराजू ऐसा आज तक ईजाद नहीं हुआ जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। उसके सीने में जो तड़पती हुई ममता रखी गई है, मोहब्बत का जो जहां आबाद कर दिया गया, उल्फतों की एक कायनात माँ के सीने में रख दी गई है, उसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी। वो सीने में दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो कायनात, वो अनोखा प्यार जो औलाद के लिए रखती है, ये इतना प्यार माँ के सीने में पैदा कैसे होगा? तो आपके पास ही की जवाब होगा, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। तो मैं यहाँ आपकी तवज्जो चाहूंगा, जिस माँ ने औलाद को जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तवज्जो चाहिएगा। सिर्फ नज़ारे के लिए जुम्बश मिजगा भी भार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई। तो मेरी आरज़ू ये है कि आपकी तमाम तर तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल हो। थोड़े वक्त में जिस शिद्दत की गर्मी में आप बैठे हैं मुझे इसका एहसास है, तो मैं चाहूँगा कि चंद बातें आप तक पहुँच जाए। तो जो माँ इतना प्यार करती है वो इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है। तो जिसने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया वो कितना प्यार। तो माँ की दहलीज छोड़ के बेटा भाग जाए तो माँ आवाज़ देती ना, पुत्र कहाँ भाग रहा है, आजा पलट के, इतनी ठंडी छाँव कहीं नहीं मिलेगी, इतना प्यार तुझे कहीं से नहीं मिल सकता, आजा पलट के। माएँ तो माएँ होती है और औलाद के लिए उनके सीने में जो तड़पती हुई ममता होती है और प्यार का जो एक आबाद जहाँ होता है वो एक अलग ही कायनात है, वो एक अलग ही जहाँ है। वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा कि मैं तो तेरे से तब राजी होंगी कि तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाएगा। तो वो बदमस्त आशिक अपनी माँ की आरजू, अपनी महबूबा की आरजू को पूरा करने के लिए इस अमल से भी गुजर गया और माँ का कलेजा चीरा और तश्तरी में रख के अपनी महबूबा के लिए उसका कलेजा ला रहा था। तो रास्ते में ठोकर लगी तो माँ के कलेजे से आवाज़ आई कि पुत्र सटने नहीं लगी। ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत के बिखरे हुए रंग है, ये छलकता हुआ उजाला और नूर और रोशनी है। माँ इतना प्यार करती है। अल्लाह अकबर। तो माँ को इतना प्यार इसलिए है कि उसने जन्म दिया और रब ने तो खलक किया दस्ते कुदरत से। तो माँ की दहलीज छोड़ के बच्चा भाग जाए तो माँ कहती है पुत्र आजा वापस पलट के। और जब बेटा पलट के आता है तो माँ सब भूल जाती है किसने क्या किया था। तो जो 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है उसकी भी आवाजें आ रही हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आजा पलट के मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। मैं ये नहीं देखूंगा तू मुजरिम कितना बड़ा है, मैं ये देखूंगा तू मेरी दहलीज से पलट के आ गया है। तो उसकी रहमतें बंदे को पुकार रही। तो ये उठते हुए जनाजे, ये फैली हुई कब्रें,
और ये हमसे बिछड़ते हुए हमारे अहबाब, दोस्त, भाई, अजीज़ ये हमें बताते हैं कि मियाँ इस ज़िंदगी से, ज़िंदगी का मुतय्यन सफ़र काट करके तुम बिल आखिर अल्लाह के हुज़ूर पलट के आने वाले हो। उखरवी ज़िंदगी के लिए अच्छे आमाल का ज़ख़ीरा जमा करो और अपनी आखिरत की तैयारी करो। चूँकि मौत जब आ जाती है तो एक लम्हे का भी तक़द्दुम ताख़ुर नहीं होता। मौत एक कटल तयशुदा अमर वाक़ई और हकीकत वाक़िया है। बहर सूरत इसने आके रहना है, बल्कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इसको अचानक रख करके हमें हर वक्त मुस्तैद और फ़आल रहने की तरगीब दी ताकि हम हर लहजा, हर साथ अपने आप को आमादा रखें। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है और हम मौत की इस गाड़ी में सवार हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो आइए मैं और आप अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की मनसूबाबंदी भी करते हैं। जब लोग हमसे जुदा होते हैं तो हमें इबरत होती है कि हम भी जा रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल से अहद ले रखा था कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूँ। अंबिया तो तैयारी होते हैं, कुछ चीज़ें तालीम उम्मत के लिए होती। तो कहा कि जी मेरा वादा रहा। तो एक अरसे के बाद हज़रत इज़राइल हाज़िर खिदमत हुए और कहा कि हुज़ूर मैं कब्ज़े रूह के लिए आया हूँ। फरमाया तुमने तो वादा किया था अचानक नहीं आऊँगा, तुम अचानक आ गए, कोई कासद नहीं भेजा। तो कहा हज़रत मैंने तो कासद भेजे थे। फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। अर्ज़ की हुज़ूर आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। जब कमर में खम आने लगे, जब आज़ा मुदमहिल होने लगे, जब चलते हुए ठोकने लगे, जब जुबान में लुकनत आने लगे, जब यादाश्त खोने लगे, जब बालों में चांदी उतरने लगे, जब इंसान के आज़ा जवाब देने लगे, तो समझो ये पैगाम मौत आ गए। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में बैठे थे। तो एक साहब आया और उसने कहा कि या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। और यूं कांपने लगे हज़रत उमर जैसे बेत की शाख कांपती है। और उससे कहा कि रोज़ आके मुझे तज़कीर कर जाया कर। वो रोज़ आता है, बड़े दरबार में खड़ा होकर कहता है उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। एक दिन आया, आपने उसको कहा मैं आज के बाद नहीं आना। कोई और शख्स आने लगा, फरमाया नहीं। तज़कीर मौत की ज़रूरत नहीं रही, फरमाया नहीं। मुझसे कोई गुस्ताखी होगी, फरमाया नहीं। तो फिर मुझे छुट्टी क्यों दी जा रही है। तो हज़रत उमर रोए और यूं दाढ़ी पे हाथ रखा और एक बाल अलग करके कहा ये देख मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया, अब ये मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफ़ेद हो जाए ना। मियाँ साहब ने कहा हड्डियाँ खड़कन, हड्डियाँ कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बाज ना आयो जियो मदद तलेरा, फमा अस्वरहुम अलन्नार। अल्लाह कुरान में फरमाता कितना हौसला है लोगों का आग पर, कितनी ढटाई के साथ कह देते ये जहाँ मिठा मिला किसने मिठा। कब्रिस्तानों में जाके देखो किस किसने देखा है आखिर वाला जहाँ। हज़रत सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अलैहि रहमा व रिदवान फरमाते जाओ कब्रिस्तानों में जाकर देखो कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। जो बदन पे चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, आज उनके कफन भी तार तार हो गए। खैर को नए फलां व गनीमत शुमार उमर ज़ां बेशतर के बांग बरायत के फलां नमाज। तूने भी चले जाना है, यहाँ बैठ नहीं रहना। ये उठते हुए जनाजे तुझे इबरत देते हैं, ये फैली हुई कब्रें तुम्हें बताती हैं कि मियाँ तुम भी इसी मिट्टी का रिज्क बनने वाले हो, तुम ही यही चादर ओढ़ के सोने वाले हो। तुम दो लिबास के दो कपड़ों के अंदर, दो सफ़ेद चादरों के अंदर मलबू। कहाँ गई वो पोशाकें, कहाँ गए वो ब्रांड, कहाँ गए वो तुम्हारे कीमती बेड, और कहाँ गए एसी लगे माहौल से आरास्ता कमरे। अमीर है या गरीब है वो 2 गज ज़मीन और वही मिट्टी का ओढ़ना, मिट्टी का बिछोना, वही 2 गज कफन, वही कुल कायनात। और वहाँ जो किए हुए अमल है वही सिक्का राइजुल वक्त होगा। तो कबल इससे कि वो वक्त आ जाए अगर हाथ मले, फलां चीख चीख के कहता था मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, फलां पुकार पुकार के कहता था उसकी आवाज़ पे कान धरना चाहिए था, फलां उठता हुआ जनाजा मुझे इबरत दे देता, फलां बंदे ने मुझे ये कहा था उसकी बात पे काश में अमल कर लिया होता। लेकिन उस दिन पछतावे से क्या होगा। आज का पछतावा कल की बेहतरी का ज़ामिन हो सकता है, आज का पछतावा जिंदगी बदल हो सकता है, आज का पछतावा तौबा का सबब और ज़रिया हो सकता है, आज का पछतावा दिल के मैल उतार सकता है, और कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने के, सवाए दुख बढ़ाने के, सवाए तकलीफ में इजाफे की और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं और आप अपनी जिंदगी की मनसूबाबंदी करें। मुझे पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ और आपको भी पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। आप मुझे अच्छा समझते हैं, ये आपकी मेहरबानी, लेकिन मुझे तो पता है कि अच्छा हूँ या नहीं। मैं आपको अच्छा समझता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि आप कहाँ खड़े हैं। इसलिए अपने ज़मीर में झांक करके देखिए, अपने मन में उतर करके देखिए, अपना मुहासबा कीजिए, अपने अमाल का तजज़िया कीजिए। जो नेकियां की हैं और जो बुराइयां की हैं उनका अंदाज़ा कीजिए। जो बुराइयां की हैं वो तो कन्फर्म बुराइयां हैं, और जो नेकियां की हैं ज़रा देखिए वो नेकियां हैं या रिया के लिए की हैं, दिखलावे के लिए की हैं। नेकियां किसी को दिखलाने के लिए की हैं, किस मकसद के लिए नेकियां की हैं।
थोड़ी सी रिया भी शिरक बताई गई है। सारी मेहनत कहीं ज़ाया तो नहीं चली गई, हमारे पास है क्या, हमारे दामन में गुनाह है तो लुथले बड़े हैं। सवेर से लेकर शाम तक, चुगली गीबत से लेकर बदकारियों तक, निगाहों की बदकारियों से लेकर के सोचों की बदकारियों तक हम कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं। और दूसरी जानब हमारे पल्ले में नेकियां कितनी हैं, हमें सारा पता है। एक तो नामा अमाल क़यामत के दिन तोला जाएगा, हम खुद अपने ज़मीर की अदालत में तराजू गाड़ के तोले। हज़रत उमर फरमाया करते थे, हासिबू कबल अन तुहासबू, इससे कबल के तुम्हारा हिसाब किया जाए, तुम अपना हिसाब पहले ही खुद कर लो। कभी आप उम्रे पे जाते हैं या बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो वहाँ सामान बांध करके पहले तोल रहे होते हैं कि एयरपोर्ट पे परेशानी ना हो। हालांकि एयरपोर्ट पे अगर 2-4 किलो सामान बढ़ भी गया तो कोई बात नहीं, 4 रियाल दे के आप सामान ला सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप वहाँ किसी से तराजू मांग के बार बार अपने पीस तोल रहे होते हैं कि जनाब एयरपोर्ट पे जाके परेशानी ना हो। तो इस दुनिया पर भी अमाल तोल लो, कहीं निज़ा के वक्त परेशानी ना हो, का हशर के वक्त जब अमाल तुलने लगे तो वहाँ परेशानी ना हो। तो ये थोड़ा सा वक्त है, ये ज़िंदगी मुख्तसर है और हम तेज़ी के साथ मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये तुम्हारी सांसें जो हैं ये मौत की तरफ उठते हुए कदम हैं। तुम समझते हो हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में तुम छोटे हो रहे हो। क्योंकि गिनती जब उल्टी शुरू हो जाए तो काम जल्दी ज़ीरो पर पहुँचता है। कभी आप इशारे पे रुके हों तो 60 से नीचे आ रही हो या 70 से या 120 से, तो काम तो ज़ीरो पे आ जाता है। और जब काम ज़ीरो पे आ जाता है तो फिर लाल बत्ती जल जाती है। अल्लाह अकबर। तो ये तेज़ी के साथ ज़िंदगी गुजर रही है और हम कोई 60 से नीचे आ रहा है, कोई 55 से नीचे आ रहा है, कोई 50 से नीचे आ रहा है। और जब ज़ीरो तक आ जाएंगे फिर उससे आगे तो कुछ भी नहीं है। एक रिवायत में आता है, इन्नल्लाह युहिब्बुश्शाबत ताइब, अल्लाह ताला तौबा करने वाले जवान को पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है। तो वो महबूब बारगाह हो जाता है जो जवानी में अल्लाह जल्ला शानो के हुजूर रुजू करता है। या किसी ने कहा था, दर जवानी तौबा करदन शिवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम मी शवद परहेज़गार। जवानी में तौबा करना पैगम्बरों का शेवा है। जब बूढ़ा हो जाए, दांत टूट जाएं, पंजों में जोर न रहे, तो भेड़िया शिकार छोड़ करके शरीफ बन के बैठ जाए, तो ये तो उसकी मजबूरी है। जवानी में तौबा करना, जब कवा मजबूत हों, जब शबाब की जोलानियाँ हों, जब आरजुएं जवा हों, जब ख्वाहिशें पगली हों, और फिर उसके बावजूद अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना, अपनी आरजुओं को लगाम डाल देना और अपनी तमन्नाओं को हिसार में रखना और अल्लाह से डर के गुनाहों को छोड़ना और उसके हुजूर सजदा रेजियाँ, उसके हुजूर खुशू व खुजू के साथ ज़िंदगी के लम्हात बसर करना, ये खुश नसीब लोगों का मकसूम होता है। तो वो जवान जिसकी जवानी याद इलाही में गुजरी, जिसकी जवानी ज़िक्र इलाही में गुजरी, मुसल्ले पे गुजरी, तहज्जुद के लम्हात में वो उठ के अल्लाह के हुजूर दुआएं करता रहा, इल्तिजाएं करता रहा, वो जवान क़यामत के कड़कते उस माहौल में अल्लाह के अर्श के ठंडे साए तले होगा। तीसरा शख्स जिसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया अता करेगा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, मस्जिद के साथ लटका हुआ है। मस्जिद की मुलाजमत, मस्जिद की हाज़िरी, मस्जिद की सफाई, मस्जिद की सुथराई, मस्जिद की पाकीज़गी के लिए कोशिश, मस्जिद की तामीर, मस्जिद की तज़हीन और मस्जिद की आबादी के लिए दिन रात कोशां रहा। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है। तो ये खुश नसीब वो है जिसका दिल जुड़ा हुआ है मस्जिद के साथ। एक जलीलुल क़द्र नाम आपने सुना है और वो है रबी बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। इन्हें हमामतुल मस्जिद कहा जाता था, मस्जिद का कबूतर। तो ये कहा करते थे, इस कदर मस्जिद में रहते तो कहते मुझे अच्छा लगता है कि मैं अल्लाह के घर में रहूं। तो ये फरमाया करते थे कि जिस दिन अजान हो और मुझे मस्जिद में ना पाओ तो समझ लेना कि मेरा इंतकाल हो गया। ये हो नहीं सकता कि नदाए नमाज हो, अजान पुकारी जाए और मुझे आप मस्जिद में ना देखो। तो मस्जिद की हाज़िरी ये इनका शियार हयात था, इसलिए इनको हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर कहा गया। तो कितने खुश नसीब लोग हैं जो मस्जिद से जुड़े होते हैं। फरमाया कुछ लोग हैं जो मस्जिद से यूं जुड़े हुए होते हैं जिस तरह लकड़ी में कील ठुका होता है, तो चोब के अंदर जिस तरह कील जुड़ा हुआ होता है, इसी तरह वो मस्जिद के साथ जुड़े हुए। तो कभी वो बीमार हो जाएं और वो मस्जिद हाजिर ना हो पाए तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो उनकी अयादत करने के लिए उनके घरों में जाते हैं। ये खुश नसीब लोग हैं जो मस्जिद के साथ अपने आप को वाबस्ता रखते हैं। फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह
اللہ کی مسجدوں کو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، نام و نمود کے لیے نہیں، کسی اور غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کی، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ بلکہ پوری مسجد بھی نہیں، آدھی اینٹ کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا، تو ایک جانور کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد کی تعمیر کی، تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت بتائی گئی کہ جنت میں اس کو محل دیا جائے گا، قصر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں۔ مساجد بیت اللہ کی بیٹی ہے، کعبۃ اللہ کی بیٹی، یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہے، خیر الاماکن، بہترین جگہیں اس کائنات میں اللہ کے گھر مسجدیں۔